Welcome again to D Educa. In this video, we will discuss some important theorems about the Fourier transforms. We have three theorems here. First theorem is shifting theorem. Then we have modulation theorem. And last one is that's we call as convolution theorem. Okay. So first we will state and prove the first theorem, that is shifting theorem. Okay, what is shifting theorem? Shifting theorem. Shifting theorem. Okay, statement is that if f of s is the Fourier transform of, if it is the Fourier transform of f of x, then we have a shifting theorem. It states that Fourier transform of function of x minus a, we are shifting. Okay, it will be equal to e power iota s a Fourier transform f of s. So we have to prove this theorem. What is the proof? देखिए प्रूफ क्या है, बहुत ही आसान प्रूफ है इसका. As we know that f of s, the definition of Fourier transform is like this: 1 by root of 2 pi minus infinity to infinity e power iota sx f of x dx. Okay, now we have to prove Fourier transform of f of x minus a. So we have to do like this. Therefore, Fourier transform of function of x minus a, that will be equal to 1 by root of 2 pi minus infinity to infinity e power iota s. तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, e power iota sx, but here we have f of x minus a. dx. Okay, we have to prove f of x minus a is equal to e power iota sa f of s. So we have the definition this. We applied this transform on f of x minus a, that's equal to f of x के बदले हमें लिखना है function of x minus a. Now हम क्या करेंगे, यहां पर पुट कीजिए आप x minus a is equal to t. Put x minus a is equal to t. तो यहां से आपको मिलेगा dx equal to dt. बहुत ही आसान है. अब आप इसमें पुट कीजिए, therefore f of x minus a. तो अब आप यहां पर आ जाएं. So we will have 1 by root of 2 pi minus infinity to infinity. Here e power iota s. In place of x we will write a plus t या t plus a, एक ही बात है. Then we have f of x minus a के बदले है f of t और dx के बदले है dt. I hope यहां तक आपको समझ में आ गया होगा. It's very easy. It's not a difficult one. So we will have 1 by root of 2 pi. You can easily see that minus infinity to infinity. अब देखिए यहां पर e power iota s t, इसको आप अलग और e पावर आयोटा एस ए को आप अलग कीजिए, तो आपके पास आ गया e पावर आयोटा एस ए. इसको आप अलग कर सकते हैं, e पावर आयोटा एस ए एंड e पावर आयोटा एस टी एफ ऑफ टी डी टी. आई होप थ्योरम इज प्रूव्ड. सो वी कैन राइट e पावर आयोटा एस ए को आप इस इंटीग्रल से बाहर यहां पर आप निकाल सकते हैं. सो वी विल हैव
1 by root of 2 pi minus infinity to infinity e power iota st f of t, that's equal to e power f of s. Because 1 by root of 2 pi minus infinity to infinity e power iota st f of t is f of s, so it is the shifting theorem. Hence we have proved if f of s is the Fourier transform of this, then f of x minus a is equal to e power iota sa f of s. So we have proved the first theorem, that's shifting theorem. Okay. Now we have another theorem, that's modulation theorem. ये बहुत ही इजी है, शिफ्टिंग थ्योरम से भी इजी. मॉड्यूलेशन थ्योरम क्या कह रहा है, इसका स्टेटमेंट बहुत ही आसान स्टेटमेंट है कि इफ f of s is the Fourier transform of f of x, same. Fourier transform of f of x, then क्या कह रहा है, then Fourier transform of f of x cos ax, cos है यहां पर, cos ax will be equal to 1 by 2 f of s plus a plus f of s minus a. ये है इसका स्टेटमेंट. और प्रूफ बहुत ही आसान है, शिफ्टिंग थ्योरम से भी आसान प्रूफ है इसका. देखिए क्या है आप तो जानते हैं, वी नो दैट f of s होता है किसके बराबर, 1 by root of 2 pi minus infinity to infinity e power iota sx f of x dx. नाउ अब आपको निकालना है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x cos ax. देयरफॉर आप इसी का निकालिए, cos ax. तो क्या लिखना है आपको, cos ax. तो यहां पर आ जाएगा 1 by root of 2 pi. So you will have minus infinity to infinity e power iota sx. f of x के बदले लिखना है आपको f of x cos ax. dx. नाउ अब आप आ जाएं यहां पर, इसको आप सॉल्व कीजिए. 1 by root of 2 pi minus infinity to infinity e power iota sx. f of x को भी आप कुछ मत कीजिए. नाउ cos of ax के आपके लिए फार्मूला है इसकी e power iota ax plus e power minus iota ax is equal to 2. dx. नाउ आपको क्या निकालना है, 1 by 2. इस 1 by 2 को बाहर निकालिए. f of s plus a, here you can see that you will have e power iota s plus a x f of x dx हो गया एक साइड. एक और साइड आ जाएगा e power iota s minus a f of x e power this dx हो गया एक और साइड. So you will get the result. Okay, so you will get 1 by root of 2 pi. Just separate the integrals. E power iota s plus a x f of x dx plus 1 by root of 2 pi minus infinity to infinity iota s minus a x f of x dx. यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है. सो लास्टली यू कैन राइट डाउन दैट
this is the Fourier transform of s plus a, and this is s minus a by the definition. So therefore एंड में आप लिख सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x cos ax will be equal to 1/2 f of s plus a plus f of s minus a. That is the result, that is the proof of a theorem that's called modulation theorem. Okay. And the last theorem we have convolution theorem. Okay, first write the definition of what is the convolution of two functions. Here the definition. Write the definition, then we will prove convolution theorem. First of all, write the definition. The convolution of two functions. The convolution of two functions. कौन function? f of x and g of x is defined as, वो क्या होता है देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, f of x star g of x is always equal to 1/√2 pi minus infinity to infinity f of u g of x minus u du. So here you can easily see that in order to prove this theorem, convolution theorem, we will use g of x, that's shifting theorem. Now you can write the what is convolution theorem, what it states. Convolution theorem states that, क्या कह रहा है इसका statement? The Fourier transform of this, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x स्टार f of x स्टार gx, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, इनको आप अलग अलग कीजिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x इनटू फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ g of x. The Fourier transform of convolution of two functions is the product of the transforms of the two functions. This is a statement. So you can write it like this. इसको आप f of s भी लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं g of s. So you have to prove this Fourier transform of this convolution is equal to the product of the two transforms. इसको आप f को अलग कीजिए ट्रांसफॉर्म और g of x को अलग कीजिए ट्रांसफॉर्म, उसी को हम नाम लिखते हैं f of s g of s. अब आप इसका प्रूफ कीजिए, देखिए कितना आसान प्रूफ है. प्रूफ क्या है आपके पास चाहिए, हमें चाहिए फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस. तो हम क्या करेंगे, हमें ये तो हमें मालूम होना चाहिए, एंड यू नो दैट दिस इज द convolution of two functions and we have the definition. So we have proof f of x star g of x. अब आप बताइए किसके बराबर होता है, 1/√2 pi minus infinity to infinity f of u g of x minus u du. बट हमें क्या चाहिए, इसका ट्रांसफॉर्म. तो अब इसको आप अप्लाई कीजिए, यहां से भी फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कीजिए, वहां से भी फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कीजिए. तो हमें इसको प्रूव करना है, तो इसको आप मिटा सकते हैं. नाउ अप्लाई कीजिए ट्रांसफॉर्म. देयरफॉर यहां पर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कीजिए यहां से भी. g of x is equal to Fourier transform of 1/√2 pi. बहुत आसान प्रूफ, ये हो गया वैसे कंप्लीट. f of u
जी ऑफ एक्स माइनस यू डी यू। आई होप कि आपको ये दिखता होगा। लेट मी सी। यस, बहुत ठीक है। तो अब आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये क्या कह रहा है? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। अगर आपको याद होगा, हमारे पास होता है एफ ऑफ एस 1/√2 तो इस एस के बदले यहां पर क्या है? ये वाली फंक्शन। तो हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना होता है, तो होता है 1/√2 ई पावर आयोटा एस एक्स। तो यहां पर एफ के बदले ये है, तो अब आप अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स इक्वल टू, हियर वी हैव एफ के बदले इतना सारा लिखना है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म वी हैव 1/√2 है ना। यही क्या होता है फिर? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यही होता है ना। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी क्या होती है फार्मूला? ई पावर आयोटा एस एक्स, यही है ना। ई पावर आयोटा, वेट, यस, ई पावर आयोटा एस एक्स, यही होती है फार्मूला। ई पावर आयोटा एस एक्स फंक्शन ऑफ एक्स। बट फंक्शन क्या है आपके पास? ये है फंक्शन 1/√2। इसको आप समझो, इस पॉइंट को। वी हैव टू अप्लाई द, बिल्कुल डेफिनेशन हमें अप्लाई कर रहे हैं, सिंपली डेफिनेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस दैट्स इक्वल टू 1/√2 इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर आयोटा एस एक्स फंक्शन। सो आपके पास 1/√2 इंटीग्रेशन ई पावर आयोटा एस एक्स फंक्शन। फंक्शन ये है आपके पास, वही मैंने लिखा 1/√2 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी, यही है ना। सो अब ये तो आसान है, अब बहुत ही आसान प्रूफ है इसका। तो नाउ यू कैन राइट डाउन सेपरेटली 1/√2। इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू डी यू, इसको आप अलग कीजिए। ओके, देन यू विल हैव, अब देखिए यहां पर ई पावर आयोटा एस एक्स एफ ऑफ एक्स फिर होता है डी एक्स। इसको आप अलग लिख सकते हैं, डी एक्स हमें यहां पर भूल गया था। सो एफ ऑफ यू डी यू, नाउ इसको आप अलग अलग कीजिए। 1/√2 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये है ई पावर आयोटा एस एक्स, यहां पर है जी ऑफ एक्स माइनस यू, और यहां पर है डी एक्स, यही है। अब देखिए ये है एक और ट्रांसफॉर्म 1/√2। इसको आप फिलहाल आप इसको ऐसे ही लिखिए, ये तो कोई मसला ही नहीं यहां पर। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू डी। अब आप देखिए यहां पर ये एक और ट्रांसफॉर्म हो गया 1/√2 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी ई पावर आयोटा एस एक्स जी ऑफ एक्स माइनस, मतलब ये एफ ऑफ एक्स है, तो होता है क्या? एफ ऑफ हो गया। मतलब ये हो गया एक और ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ, मतलब इसका ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस यू, ये है ना। डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस यू। नाउ यू हैव, अभी हमने की है शिफ्टिंग थ्योरम एफ ऑफ एक्स माइनस ए, तो होता है ये। अब आप बताइए किसके बराबर होता है ये? बहुत ही आसान है ये। तो यू विल हैव, वी आर अबाउट टू एंड द थ्योरम 1/√2 माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। अच्छा, वहां पर हमने क्या किया था? अगर आपको याद होगा, इन द शिफ्टिंग थ्योरम एफ ऑफ एक्स माइनस ए, ये होता है किसके बराबर? ई पावर आयोटा एस ए एफ ऑफ एस, एफ ऑफ एस। यहां पर क्या है? एक्स माइनस यू ई पावर आयोटा एस यू, फिर होगा वहां पर एफ ऑफ एस, बट यहां पर क्या है? जी, तो जी ऑफ एस हो गई थ्योरम 2। सो यू कैन राइट डाउन लाइक दिस 1/√2
इसको आप अलग अलग कीजिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e पावर आयोटा u s f of u du and into g of s. So you can write down f of s into g of s, or you can write down Fourier transform of function of x into Fourier transform of g of x. This is the convolution theorem, and hence we have stated and proved all the theorems about Fourier transform which are important. So we can conclude here. I hope you have understood the whole topic, and these are very most important theorems. So okay, best of luck, and इंशाल्लाह बहुत ही जल्द यहाँ पर मिलेंगे किसी और लेक्चर के साथ, किसी और ठीक है वीडियो के साथ. तब तक अल्लाह हाफिज.